Hello everyone, welcome back to the channel. In this series, we are going to analyze the CVT PG Political Science 2026 paper unit wise so that you can get a clear idea of which topics were asked, what kind of questions were framed, and how you should approach these topics for your upcoming examination. In this video, we will specifically cover two important units, that is, international relations and comparative politics. We will go through the questions one by one and try to understand not just the correct answer but also the concept behind the question and what you should learn from it from an exam perspective. So let's begin with international relations. The first question is based on chronology. Here, you are given a few major international events and important developments in Indian foreign policy. आपको correct chronological order में इनको arrange करना है. So this is essentially a factual and chronology based question. For questions like this, you need to have a good command over important dates, events, treaties, agreements, organizations and major developments in IR and foreign policy. Let's solve this question through the timeline. पहला इवेंट है पाकिस्तान joins SEATO. SEATO here stands for Southeast Asian Treaty Organization. It was created in 1954 as part of the US-led strategy of containment of communism. So इसी साल पाकिस्तान SEATO ज्वाइन करता है and the main motive behind joining this alliance was to secure Western military and economic assistance, to counter communist expansion and strengthen its strategic position, particularly against India. Next है Indo-Soviet Treaty. In August 1971, India and Soviet Union signed the Treaty of Peace, Friendship and Cooperation, which strengthened their strategic partnership. अब इसी साल का एक और मेजर इवेंट है लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश इन दिसंबर 1971. हालांकि बांग्लादेश लिबरेशन वार मार्च में ही स्टार्ट हुआ था, बट दिसंबर में बांग्लादेश लिबरेशन वार के बाद ईस्ट पाकिस्तान बिकेम इंडिपेंडेंट एज बांग्लादेश. इसके बाद आता है सिमला एग्रीमेंट जो कि 1972 में हुआ. 1971 के इंडिया पाकिस्तान वार के बाद दोनों देशों ने इस एग्रीमेंट को साइन करके बायलैटरल इश्यूज को पीसफुली सॉल्व करने पर एम्फेसिस दिया. और फाइनली इन 1974 इंडिया कंडक्टेड इट्स फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट इन पोखरन, जिसे स्माइलिंग बुद्धा के नाम से जाना जाता है. सो द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ दीज इवेंट्स विल बी A, B, D, E, C, that is option 4th. Let's look at the second, which is assertion and reason based question. The first statement is in 1960, with the help of IMF, India and Pakistan signed the Indus Water Treaty. The reason given here that the two countries are not in agreement over the demarcation line in Sar Creek in the run of Kutch. So assertion की बात करें तो this is incorrect statement. In 1960, the Indus Water Treaty was negotiated and signed with the help and mediation of the World Bank, not the IMF. World Bank is International Bank for Reconstruction and Development. The second statement, that is reason, is correct here. India and Pakistan have a long-standing boundary dispute over the demarcation of the line in Sar Creek. It is a 96-kilometer strip of water in the run of Kutch, which is a marshland between Gujarat and Sindh, Pakistan. So the correct option will be option 4th. Assertion is incorrect and reason is correct. Third question is choose the correct pairs from below. We have given Nuremberg trials, Treaty of Versailles, Chinese Revolution, and Berlin Wall erected. So let's quickly check each pair. पहला है Nuremberg trials. This is incorrect pair because the Nuremberg trials began in 1945 after World War II to prosecute major Nazi leaders. Next है Treaty of Versailles. This is correct. It was signed after World War I in 1919 and imposed major terms on Germany. Third है Chinese Revolution. Again this is incorrect pair क्योंकि 1917 में रशियन रिवोल्यूशन हुआ था, ना कि चाइनीज रिवोल्यूशन. Chinese Revolution happened in 1911, which led to the overthrow of the Qing dynasty and establishment of the Republic of China. Finally, Berlin Wall erected in 1961. This is correct pair. The wall was erected in 1961 and became one of the most important symbols of the Cold War division. So the correct pairs are B and D only.
Therefore, the correct answer will be option first. फोर्थ क्वेश्चन है, इन विच ईयर चाइना ज्वाइंड द WTO। ये एक डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा 2001। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर इंडिया एंड पाकिस्तान साइंड द एग्रीमेंट टू नॉट अटैक न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस एंड फैसिलिटीज ऑफ ईच अदर। इसका करेक्ट आंसर होगा 1988। दोनों देशों के बीच इतना तनाव होने के बावजूद both countries agreed that their nuclear installations should not be targeted. Also, both countries have exchanged lists of their nuclear installations every year. Sixth question है, arrange the following events in chronological order: Maastricht Treaty, Bandung Conference, formation of SAARC, formation of ASEAN and Brexit. सबसे पहले इवेंट की बात करें तो बांडुंग कॉन्फ्रेंस, जो कि 1955 में हुआ था। इंडोनेशिया के बांडुंग शहर में एशिया और अफ्रीका के देशों की एक हिस्टोरिकल कॉन्फ्रेंस हुई, जिसने आगे चलकर नॉन अलाइन मूवमेंट की नींव रखी। फिर होता है फॉर्मेशन ऑफ आसियान इन 1967, जिसमें साउथ ईस्ट एशियन देशों ने मिलकर एक एसोसिएशन बनाया, जिसकी शुरुआत बैंकॉक डिक्लेरेशन के जरिए की। फिर होता है फॉर्मेशन ऑफ सार्क इन 1985। देन कम्स द मास्ट्रिक्ट ट्रीटी इन 1992। इस ट्रीटी में फॉर्मल रूप से यूरोपियन यूनियन को बनाया गया और सिंगल करेंसी यूरो की शुरुआत हुई। फिर होता है ब्रेक्जिट, जिसमें यूके ने 2016 के रेफरेंडम के बाद यूरोपियन यूनियन से अलग होने का डिसीजन लिया एंड फॉर्मली लेफ्ट द यूरोपियन यूनियन इन जनवरी 2020। So the correct sequence of this question is B, D, C, A, E. That is option third. Seventh question is, in which year India joined the United Nations? So as we know that United Nations was formed in 1945, and in the same year India became the member of the UN. Eighth question है, arrange the tenure of following UN Secretaries General in correct chronological order. So इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको यूएन के सारे यूएन सेक्रेटरी जनरल्स के नाम और उनका टेन्योर याद होना चाहिए। जैसे वी आर गिवन 4 सेक्रेटरी जनरल्स इन दिस क्वेश्चन, दैट इज एंटोनियो गुटेरस, कोफी अन्नान, यूथ हंट एंड कुर्ट वाल्डहेम। सो अगर आपको प्रेजेंट के यूएन सेक्रेटरी जनरल का नाम याद भी होगा तो ये क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे प्रेजेंट में एंटोनियो गुटेरस यूएन के सेक्रेटरी जनरल हैं, और ऑप्शंस देखें तो ए का सीक्वेंस बस 2 ही ऑप्शन में लास्ट में आ रहा है, सेकेंड और थर्ड ऑप्शन में। सो बाकी के 2 ऑप्शंस ऐसे ही एलिमिनेट हो जाते हैं। ऑल्सो यूथ हंट बिकेम द थर्ड सेक्रेटरी जनरल इन 1961 and he was only secretary general from Asia. So now you can easily judge rest 2 of the options. Youth Hunt will be at the first place, followed by Kurt Waldheim, then Kofi Annan, then finally Antonio Guterres. So the correct sequence pair will be C, D, B, A. So the 9th question is, which of the following are the principal organs of United Nations? We have given Security Council, General Assembly, Economic and Social Council, Environmental Council, Cultural Fund. So as we know that there are 6 principal organs of United Nations. First one is General Assembly, UNGA. Second is Security Council, UNSC. Economic and Social Council, International Court of Justice, Secretariat, and Trusteeship Council. So the correct answer here will be A, B, C only. Environmental Council and Cultural Fund are not the principal organs of United Nations. So now 10th question is, which one of the following international events is commonly said to mark the beginning of modern international politics? Options given are Peace of Westphalia, Establishment of League of Nations, Churchill's Iron Curtain Remark, and the fourth is Pearl Harbor Attack. So इसका correct answer होगा Peace of Westphalia. इसके पीछे कुछ important reasons हैं। सबसे पहले 1648 की ट्रीटी, जिसने यूरोप की 30 ईयर्स वार को ख़त्म किया था। फिर आता है सोवरेनिटी का कॉन्सेप्ट। इस ट्रीटी से पहले स्टेट्स और एम्पायर्स पर चर्च या पोप का बड़ा कंट्रोल होता था। वेस्टफेलिया के बाद पहली बार ये डिसाइड हुआ कि हर स्टेट अपने आप में सोवरेन है और उसके अपने बॉर्डर्स के अंदर उसका पूरा कंट्रोल होगा। फिर आता है नॉन इंटरफेरेंस का कॉन्सेप्ट। एक देश दूसरे देश के इंटरनल अफेयर्स में बिना वजह इंटरफेयर नहीं करेंगे। फिर आता है नेशन स्टेट सिस्टम का कॉन्सेप्ट। आज हम जिस तरह से दुनिया को अलग अलग नेशन स्टेट्स में बटा हुआ देखते हैं,
उस वेस्टफेलियन सिस्टम की बुनियाद इसी इवेंट से रखी गई थी। Now comes the 11th question. It is again an assertion and reason based question. Assertion is IMF is an international organization which works to ensure the stability of international monetary system. Reason given is all IMF members enjoy an equal say in decision making. सो एसेसन की बात करें तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। IMF एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मेन काम ही दुनिया भर के मॉनेटरी सिस्टम को स्टेबल रखना, फाइनेंशियल क्राइसिस को रोकना और देशों को लोन देकर उनकी इकॉनमी को संभालना है। रीज़न की बात करें तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। IMF में सभी मेंबर कंट्रीज़ के पास इक्वल वोटिंग पावर या बराबर का से नहीं होता है। यहाँ हर देश का वोटिंग पावर उसके कोटा सिस्टम पर डिपेंड करता है। जिस देश की इकॉनमी जितनी बड़ी होती है और वो IMF में जितना ज़्यादा फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट करता है उसको उतना ही ज़्यादा वोटिंग पावर मिलती है। फॉर एग्जांपल USA के पास सबसे बड़ा वोटिंग शेयर दैट इज़ अराउंड 16.5% है, जबकि छोटे छोटे देशों के पास 1% से भी बहुत कम वोटिंग पावर है। सो द करेक्ट आंसर विल बी assertion is correct here but reason is not correct. Next question. Arrange the following American presidents in chronological order as per their tenure. We have given 5 American presidents here, but there can be 2 possible answers depending on which George Bush is being referenced here. और NTA ने भी अपने आंसर की में 2 ऑप्शंस को करेक्ट माना है। तो इन प्रेसिडेंट्स की टेन्योर की बात करें तो सबसे पहले आते हैं जॉन एफ कैनेडी, जो 1961 से 1963 के बीच अमेरिका के प्रेसिडेंट रहे। देन फॉलोड बाय लिंडन जॉनसन, रिचर्ड निक्सन, जॉर्ज H.W. बुश, जो अमेरिका के 41वें राष्ट्रपति थे। देन बिल क्लिंटन 1993 to 2001, followed by George W. Bush, who was the 43rd president of America from 2001 to 2009. So the correct sequence can be option first A, B, E, C, D, or option third A, B, E, D, C. So 13th question is again based on international events in which you have to match their years. So the first event given is Farakka Treaty for sharing of Ganga water. It happened in 1996. इंडिया ने वेस्ट बंगाल में फरक्का बराज बनाया था ताकि हुगली रिवर में पानी का फ्लो बना रहे। इससे बांग्लादेश में ड्राई सीजन के दौरान गंगा पानी की कमी होने लगी। 1996 में PM HD देवेगौड़ा और बांग्लादेश की PM शेख हसीना ने 30-ईयर वाटर शेयरिंग ट्रीटी साइन की, जो दोनों देशों के बीच एक बड़ा डिप्लोमेटिक माइलस्टोन था। सेकेंड इवेंट है पाकिस्तान कंडक्टेड न्यूक्लियर टेस्ट। इंडिया ने मई 1988 को पोखरण सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट किए थे। इसके जवाब में पाकिस्तान ने 28 मई 1998 को ही चगई फर्स्ट लोकेशन पर अपने पहले न्यूक्लियर टेस्ट किए और खुद को न्यूक्लियर स्टेट डिक्लेयर किया। थर्ड इवेंट है वाजपेयी मुशर्रफ आगरा समिट। इंडिया के PM अटल बिहारी वाजपेयी और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट परवेज मुशर्रफ के बीच जुलाई 2001 को आगरा में पीस समिट हुई थी। इसका गोल कश्मीर इशू और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पर बात करना था, लेकिन बिना किसी ज्वाइंट एग्रीमेंट के ये समिट फेल हो गया था। नेक्स्ट इवेंट है अफगानिस्तान ज्वाइंस सार्क। सार्क साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन की शुरुआत 1985 में 7 मेंबर कंट्रीज से हुई थी। न्यू दिल्ली में 2007 की 14th सार्क समिट में अफगानिस्तान को 8th मेंबर के रूप में शामिल किया गया था। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन फोर्थ, ए का फोर्थ, बी का थर्ड, सी का सेकेंड और डी का फर्स्ट। 14th क्वेश्चन इज अगेन इवेंट्स और ईयर मैचिंग करने के हैं। सबसे पहला इवेंट है ईरानियन रिवोल्यूशन, जो कि 1979 में हुआ था। ईरान में शाह मोहम्मद रजा पहलवी का रूल था। शाह स्ट्रांगली प्रो वेस्टर्न और स्पेशली प्रो US थे, लेकिन ईरान में शाह के अथॉरिटेरियन रूल, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स और रैपिड वेस्टर्नाइजेशन के अगेंस्ट अपोजिशन बढ़ती गई। 1978-79 में मैसिव प्रोटेस्ट और डिमॉन्स्ट्रेशंस हुए। फाइनली 1979 में शाह ईरान से चले गए और अयतुल्ला खमेनी एग्जाइल से वापस आ गए। इस रिवोल्यूशन के बाद इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान इस्टेब्लिश हुई। नेक्स्ट इवेंट है जनरल पिनोशे बिकेम द रूलर ऑफ चिली। तो थोड़ा बैकग्राउंड में जाएं तो 1970 में सल्वाडोर आइंदे चिली की प्रेसिडेंट बने। वो एक सोशलिस्ट लीडर थे और उनकी पॉलिसी से चिली में सोशलिज्म को स्ट्रेंथन करने की कोशिश हो रही थी। कोल्ड वार के कॉन्टेक्स्ट में ये यूनाइटेड स्टेट्स के लिए कंसर्न था, क्योंकि लैटिन अमेरिका में
कम्युनिस्ट सोशलिस्ट इन्फ्लुएंस का बढ़ना यूएस को एक्सेप्टेबल नहीं था। 11 सितंबर 1973 को चिली में मिलिट्री कूप हुआ। इस कूप को जनरल अगस्तो पिनोसे ने लीड किया और आइंदे के गवर्नमेंट को ओवरथ्रो कर दिया। इसके बाद पिनोसे चिली के अथॉरिटेरियन रूलर बन गए। अगला इवेंट है सॉलिडेरिटी इन पोलैंड फाउंडेड। तो इसका करेक्ट मैचिंग ईयर होगा 1980। पोलैंड उस टाइम सोवियत ब्लॉक का पार्ट था और कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के अंडर था। 1980 में वर्कर्स के ग्रीवेंसेस के अगेंस्ट शिपयार्ड स्ट्राइक्स शुरू हुए। इन्हीं डेवलपमेंट से सॉलिडेरिटी नाम के इंडिपेंडेंट ट्रेड यूनियन मूवमेंट इमर्ज हुआ। इसके प्रोमिनेंट लीडर थे लेक वालेंसा। सॉलिडेरिटी ग्रेजुअली सिर्फ एक ट्रेड यूनियन नहीं रहा, ये कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के अगेंस्ट एक मेजर सोशल पॉलिटिकल मूवमेंट बन गया। लेटर ये मूवमेंट ईस्टर्न यूरोप में कम्युनिस्ट रेजिम्स के डिक्लाइन का इंपॉर्टेंट सिंबल बना। लास्ट इवेंट है यूएसएसआर ऑफिशियली डिसॉल्व्ड। तो इसका करेक्ट मैचिंग ईयर होगा 1991। 1980s में मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत यूनियन के लीडर बने। उन्होंने कुछ रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए जैसे ग्लासनोस्ट, पेरिस्ट्रोइका, लेकिन सोवियत सिस्टम में पॉलिटिकल और इकोनॉमिक क्राइसिस और डीपेन हुआ। ईस्टर्न यूरोप में कम्युनिस्ट रेजिम्स कोलैप्स होने लगे। बर्लिन वॉल 1989 में फॉल हुआ। फाइनली सोवियत यूनियन के अंदर भी रिपब्लिक्स इंडिपेंडेंस की तरफ बढ़ने लगे। दिसंबर 1991 में यूएसएसआर ऑफिशियली डिसॉल्व हो गया। इसके साथ ही कोल्ड वॉर का भी एंड माना जाता है। So the correct answer of this question will be option 3rd. Now the 15th question is, arrange the following Cold War events in chronological order. Given events are Yalta Conference, Potsdam Conference, Truman Doctrine, formation of NATO, and Cuba Missile Crisis. So let's discuss these events chronologically. सबसे पहले आता है याल्टा कॉन्फ्रेंस। फरवरी 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 अभी ख़त्म नहीं हुआ था, लेकिन जर्मनी की डिफीट ऑलमोस्ट सर्टेन हो चुकी थी। याल्टा में 3 मेजर एलाइड लीडर्स मिले, रूजवेल्ट, विंस्टन चर्चिल और जोसेफ स्टालिन। इन्होंने डिस्कस किया कि वार के बाद यूरोप का क्या होगा, स्पेशली जर्मनी का फ्यूचर और लिबरेटेड यूरोपियन कंट्रीज़ का फ्यूचर। साथ ही यूनाइटेड नेशंस बनाने की प्लानिंग भी इम्पोर्टेंट इशू थी। याल्टा के कुछ ही महीने बाद जुलाई और अगस्त 1945 में पोट्सडैम कॉन्फ्रेंस हुई। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस याद रखना होगा। याल्टा में यूएसए के प्रेसिडेंट रूजवेल्ट थे, लेकिन पोट्सडैम तक रूजवेल्ट की डेथ हो चुकी थी, इसलिए अब यूएसए को रिप्रेजेंट कर रहे थे हैरी ट्रूमैन। ब्रिटेन में भी लीडरशिप चेंज हुआ, चर्चिल की जगह क्लीमेंट एटली आ गए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, याल्टा के कंपैरिजन में पोट्सडैम में यूएसए और यूएसआर के रिलेशंस काफ़ी टेंस हो चुके थे। वर्ल्ड वार 2 ख़त्म होने की तरफ था और फ्यूचर कोल्ड वार टेंशंस के सीड्स क्लियरली दिखने लगे थे। नेक्स्ट है ट्रूमैन डॉक्ट्रिन। अब वर्ल्ड वार 2 ख़त्म हो चुका था, लेकिन जो यूएसए और यूएसएसआर वार टाइम एलीज थे, अब उनके रिलेशंस रैपिडली डिटेरियोरेट होने लगे। 1947 में यूएसए प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमैन ने ट्रूमैन डॉक्ट्रिन अनाउंस की। इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव था कम्युनिज्म के एक्सपेंशन को कंटेन करना। इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट में ग्रीस और टर्की इंपॉर्टेंट थे। यूएसए ने सिग्नल दिया कि वो उन कंट्रीज़ को सपोर्ट करेगा जो कम्युनिस्ट एक्सपेंशन के थ्रेट का सामना कर रही हैं। यहीं से कंटेनमेंट पॉलिसी कोल्ड वार की मेजर यूएस स्ट्रेटजी बन गई। अब बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ नेटो की। यूएसए ने कंटेनमेंट को सिर्फ पॉलिसी तक लिमिटेड नहीं रखा, बल्कि मिलिट्री अलायंस भी इस्टेब्लिश किया। 4 अप्रैल 1949 में नेटो, दैट इज़ नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्म हुआ। नेटो का बेसिक प्रिंसिपल था कलेक्टिव डिफेंस, मतलब एक नेटो मेंबर पर अटैक होता है तो उसे अलायंस के अगेंस्ट अटैक माना जाएगा। इससे कोल्ड वार में वेस्टर्न मिलिट्री ब्लॉक स्ट्रेंथन हुआ। अब क्रोनोलॉजी का फाइनल इवेंट है क्यूबा मिसाइल क्राइसिस। 1962 में यूएसएसआर ने क्यूबा में न्यूक्लियर मिसाइल्स डिप्लॉय कर दिए। क्यूबा यूएसए के बिल्कुल पास था, इसलिए अमेरिका के लिए ये एक्सट्रीमली सीरियस थ्रेट था। यूएस प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी ने सोवियत मिसाइल्स को डिस्कवर करने के बाद क्यूबा के अराउंड नेवल क्वारंटाइन ब्लॉकेड इम्पोज किया। फॉर अप्रॉक्सीमेटली 13 डेज दुनिया न्यूक्लियर वार के एक्सट्रीमली क्लोज आ गई। फाइनली क्रुश्चेव एग्रीड टू रिमूव द सोवियत मिसाइल्स फ्रॉम क्यूबा और फिर जाके क्राइसिस रिजॉल्व हुआ। सो द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ दिस इवेंट्स विल बी A, B, C, D, E. That is option first. In this question, you have to match the following international events with the year. So सबसे पहला इवेंट दिया है एक्ट ईस्ट पॉलिसी। पीएम नरसिम्हा राव की 1991 की लुक ईस्ट पॉलिसी को अपग्रेड करके 2014 में पीएम नरेंद्र मोदी ने एक्ट ईस्ट पॉलिसी लॉन्च की। इसका मेन एम साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़
दैट इज़ आसियान के साथ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के अलावा स्ट्रेटजिक और सिक्योरिटी टाइज को भी स्ट्रॉन्ग करना है। सेकेंड है इंडस वाटर ट्रीटी जो 1960 में हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के बीच। रवि, बीज, सतलुज, झेलम, चेनाब और इंडस रिवर के पानी के बंटवारे के लिए वर्ल्ड बैंक की मदद से ये हिस्टोरिक ट्रीटी साइन हुई थी। थर्ड है IPKF पुल्ड आउट ऑफ श्रीलंका। 1987 में राजीव गांधी और जयवर्धने एकॉर्ड के तहत इंडिया पीस कीपिंग फोर्स दैट इज़ IPKF को श्रीलंका भेजा गया था, पर 1989 में श्रीलंकन प्रेसिडेंट प्रेमदासा के प्रेशर और इंडिया में VP सिंह की नई सरकार बनने पर IPKF की वापसी का ऑर्डर दिया गया। और फाइनली फोर्थ है नेपाल अडॉप्टेड ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। डिकेड्स तक मोनार्की और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के बाद नेपाल ने फाइनली 2015 को अपना नया रिपब्लिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफिशियली अडॉप्ट किया। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन फर्स्ट, A का 2, B का फर्स्ट, C का थर्ड और D का फोर्थ। तो अब सॉल्व करते हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन है, चूज द 3 जनरल टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल कल्चर एज आइडेंटिफाइड बाय आलमंड एंड वर्बा। गिवन ऑप्शंस आर पार्टिसिपेंट पॉलिटिकल कल्चर, नेचुरल पॉलिटिकल कल्चर, सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर, पैरोकियल पॉलिटिकल कल्चर एंड ग्रीन पॉलिटिकल कल्चर। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ACD दैट इज़ पार्टिसिपेंट, सब्जेक्ट एंड पैरोकियल पॉलिटिकल कल्चर। आइए अब एक एक करके समझते हैं कि इन तीनों टाइप्स के पॉलिटिकल कल्चर का मीनिंग क्या होता है। तो बेसिकली 1963 में गैब्रियल आलमंड और सिडनी वर्मा नाम के 2 हैवी पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने अपनी बुक द सिविक कल्चर में दुनिया की पब्लिक का पॉलिटिकल एटीट्यूड 3 मेन फ्लेवर्स में क्लासीफाई किया। सिंपल टर्म्स में समझें तो पब्लिक की पॉलिटिकल अवेयरनेस और पार्टिसिपेशन का क्वोशेंट क्या है, इसको समझने के लिए इन्होंने 3 टाइप्स के पॉलिटिकल कल्चर को क्लासीफाई किया। सबसे पहला है पैरोकियल पॉलिटिकल कल्चर। यहाँ लोगों को सेंट्रल गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन या लॉज से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उन्हें पता भी नहीं होता कि सिस्टम कैसे चल रहा है। यहाँ के सिटीजन्स को थोड़ा भी अवेयरनेस नहीं होता या इनको इंटरेस्ट नहीं होता सेंट्रल गवर्नमेंट या पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में। बेसिकली इट हैपन्स मेनली इन स्टैंडर्ड ट्रेडिशनल, ट्राइबल या सेक्लूडेड सोसाइटीज़। यहाँ लोकल चीफ या ट्राइब का रूल चलता है और काउंट्री लेवल पॉलिटिक्स इरिलेवेंट होती है। सेकेंड है सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर। यहाँ के लोग साइलेंट स्पेक्टेटर्स होते हैं, सरकार जो बोलेगी चुपचाप फॉलो करेंगे, नो आर्गूमेंट्स। यहाँ लोग गवर्नमेंट और उनके रूल्स, लॉज के बारे में पूरी तरह अवेयर होते हैं, पर पॉलिसी बनाने में कोई बोलता नहीं है। वोटिंग, प्रोटेस्ट या एक्टिव डिमांड जनरेशन जीरो होता है। दे आर जस्ट सब्जेक्ट्स, नॉट एक्टिव सिटीजन्स। इट हैपन्स मेनली इन मोनार्की, ऑटोक्रेसी या स्ट्रिक्ट ब्यूरोक्रेटिक रिजाइम्स। थर्ड है पार्टिसिपेंट पॉलिटिकल कल्चर। पीपल हियर आर द मेन कैरेक्टर्स। सिस्टम हम चला रहे हैं, क्वेश्चन करेंगे, वोट देंगे और धरना भी मारेंगे। यहाँ के लोग फुल एक्टिव मोड में होते हैं। पीपल नो देयर राइट्स, डिमांड बेटर पॉलिसीज, वोट पैशनेटली एंड एक्टिवली अटेम्प्ट टू शेप द गवर्नमेंट इनपुट्स एंड आउटपुट्स बोथ। इट हैपन्स मेनली इन फुली फंक्शनिंग मैच्योर डेमोक्रेसीज। आलमंड और वर्बा का कहना था कि जब इन तीनों का एक बैलेंस्ड कॉकटेल बनता है जिसमें पार्टिसिपेंट वाइब्स ज़्यादा हो पर थोड़ी स्टेबिलिटी भी हो, तो उसे बोलते हैं सिविक कल्चर, जो किसी भी डेमोक्रेसी की अल्टीमेट स्वीट स्पॉट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द इलेक्टोरल सिस्टम अल्टरनेटिव वोट सिस्टम इज आल्सो नोन एज फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, सेकंड बैलेट सिस्टम, प्रेफरेंशियल वोटिंग और ब्लॉक वोट सिस्टम। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज प्रेफरेंशियल वोटिंग। इसको इंस्टेंट रन ऑफ वोटिंग भी बोलते हैं। इन दिस सिस्टम वोटर्स रैंक कैंडिडेट्स इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस दैट इज 1, 2, 3 एंड सो ऑन द बैलेट रेदर देन मार्किंग ए सिंगल चॉइस। और सिंपल लैंग्वेज में समझे तो जैसे नॉर्मल वोटिंग फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में होती है कि आप सिर्फ एक कैंडिडेट के आगे बटन दबा के आते हो, पर अल्टरनेटिव वोट सिस्टम में इसमें आप कैंडिडेट्स को रैंक करते हो, जैसे फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस, थर्ड प्रेफरेंस। जैसे फर्स्ट प्रेफरेंस में मेरी पहली पसंद कैंडिडेट A है, सेकंड में अगर A हार गया तो मेरी दूसरी पसंद कैंडिडेट B है। वैसे ही थर्ड में अगर B भी हार गया तो तीसरी पसंद कैंडिडेट C है। अब बात आता है कि इसमें विनर्स कैसे डिसाइड होता है। तो सबसे पहला स्टेप होता है मेजॉरिटी चेक। सारे वोट्स की काउंटिंग होती है। अगर किसी कैंडिडेट को 50% से ज़्यादा वोट, जिसको एब्सोल्यूट मेजॉरिटी बोलते हैं, अगर ये मिल गया तो वो डायरेक्ट जीत जाता है। दूसरा स्टेप होता है एलिमिनेशन राउंड।
अगर किसी को 50% नहीं मिले तो सबसे कम वोट पाने वाले कैंडिडेट को एलिमिनेट कर दिया जाता है। फिर थर्ड स्टेप होता है वोट रीडिस्ट्रीब्यूशन। जिस कैंडिडेट को बाहर किया गया था उसके वोटर्स ने अपनी सेकंड प्रेफरेंस किसको दी थी, उनके वोट्स उन बाकी बचे कैंडिडेट्स के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। ये काउंटिंग प्रोसेस तब तक चलता है जब तक किसी एक कैंडिडेट के पास 50% से ज़्यादा वोट्स ना हो जाएं। बाकी ऑप्शंस की बात करें तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में यहाँ रैंक नहीं करना होता। जिसे सबसे ज़्यादा सिंगल वोट्स मिल गए, चाहे 30% ही क्यों ना हो, वो जीत जाता है, जैसे इंडिया के लोकसभा इलेक्शंस। दूसरा है सेकंड बैलेट सिस्टम। यहाँ अगर 50% मेजॉरिटी किसी को ना मिले तो टॉप 2 कैंडिडेट्स के बीच कुछ हफ्ते बाद वापस से इलेक्शन होता है, जैसे फ्रांस के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस। फोर्थ ऑप्शन है ब्लॉक वोट सिस्टम। ये मल्टी मेंबर कंस्टिट्यूएंसीज में होता है, जहाँ वोटर्स के पास मल्टीपल सीट्स के लिए मल्टीपल वोट्स होते हैं। अगला क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए सेंट्रल फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। ऑप्शंस आर रिप्रेजेंटेशन, गोल फार्मुलेशन, इंटरेस्ट डिसएग्रीगेशन एंड एलाइट फॉर्मेशन। सो सबसे पहला ऑप्शन देखें तो दिस इज़ वन ऑफ द फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। Parties represent the views, demands, and interests of specific groups or the general public within the political system. So representation ये political parties का function है। दूसरा है goal formulation. This is also a function of political parties. Parties set goals for society by developing policies, programs, and manifestos that guide governance if they win. थर्ड है interest disaggregation. तो ये political parties का function नहीं है। Rather, interest aggregation is the function of political parties. Instead of dividing society's interests, parties bring diverse social groups and demands together under a single party platform. Fourth है elite formation. So this is also a function of political parties. Parties recruit, train and select political leaders, candidates and government officials. तो आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। We have given some types of electoral systems and we have to match with their corresponding countries. सबसे पहला है सिंगल मेंबर प्लूरैलिटी सिस्टम, नेक्स्ट है सेकंड बैलेट सिस्टम, देन अल्टरनेटिव वोट सिस्टम एंड पार्टी लिस्ट प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। तो अब इन चारों इलेक्टोरल सिस्टम को एक एक करके समझते हैं। फर्स्ट है सिंगल मेंबर प्लूरैलिटी सिस्टम, जिसको हम फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम भी बोलते हैं। इट इज़ यूज्ड इन कंट्रीज लाइक कनाडा, यूके, यूएसए एंड इंडिया, where the candidate with the highest number of votes in a single constituency wins, regardless of whether they secure an absolute majority. दूसरा है सेकंड बैलेट सिस्टम, जिसको 2 राउंड सिस्टम भी बोला जाता है। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट दिस इन द प्रीवियस क्वेश्चन। अगर किसी कैंडिडेट को फर्स्ट राउंड में एब्सोल्यूट मेजोरिटी नहीं मिलता है तो फिर कुछ हफ्तों बाद टॉप के कैंडिडेट्स के बीच दोबारा रन ऑफ इलेक्शन होता है। थर्ड है अल्टरनेटिव वोट सिस्टम, जिसको प्रेफरेंशियल वोटिंग भी बोलते हैं। It is used in Australia for electing the House of Representatives. फोर्थ है पार्टी लिस्ट प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, इसको फुल पीआर सिस्टम भी बोलते हैं। इसमें लोग किसी इंडिविजुअल लीडर को वोट नहीं देते, बल्कि पॉलिटिकल पार्टी को वोट देते हैं। पूरे देश को एक ही बड़ा कॉन्स्टिट्यूएंसी माना जाता है। पार्टी को जितने परसेंट्स वोट मिलते हैं, पार्लियामेंट में उतने परसेंट सीट्स मिल जाती हैं। इट इज़ यूज्ड इन कंट्रीज लाइक इजराइल एंड नीदरलैंड। सो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन फर्स्ट। सो इस क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट सेक्शन में देना है। विच इलेक्टोरल सिस्टम इज़ यूज्ड इन ऑस्ट्रेलियाज सीनेट इलेक्शंस। So that's all for this video. We will solve the other units in next videos. Thank you so much for watching.